इस वक्त हम हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में, जहां शुरू हो चुका है भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का मेला, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसके 7वें एडिशन का आज उद्घाटन किया गया और उद्घाटन किसी और ने नहीं किया बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और अगले 3 दिन तक ये टेक्नोलॉजी का मेला जारी रहने वाला है और अगले 3 दिन तक हम आपको मेले की हर वो खासियत बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं कि आज इस टेक्नोलॉजी के मेले यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं। टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रांग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, विकासशील देश से विकसित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नोलॉजी। हम देश के विकास के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस मौके पर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए देश दुनिया के हर दिग्गज मौजूद रहे और इस दौरान सबसे बड़े प्लेयर रिलायंस जियोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि भारत ने 5G रोल आउट के मामले में दुनिया के सामने एक नया मुकाम हासिल किया है। Last year, you challenged us to make India a global leader in 5G technology. Your challenge energized us, and what we have achieved has stunned the world. We at Jio unleashed the fastest rollout of 5G technology witnessed anywhere in the world, deploying a 5G cell every 10 seconds. Jio has installed over 10 lakh 5G cells across all 22 circles of India. I am humbled to share that Jio alone has contributed to 85% of the overall 5G capacity in the country and provided one of the fastest 5G internet speeds in the world. Furthermore, Jio's 5G rollout is powered by 100% in-house 5G stack, designed, developed and manufactured entirely by Indian talent. You command us to make us Bharat Atmanirbhar in high-tech. Jio has delivered on your command. We have fortified our 5G infrastructure with services like JioFiber and JioAirFiber, our fixed wireless broadband offerings. Now Jio can provide 5G access to over 200 million unconnected homes and premises, making India the broadband capital of the world. India today ranks amongst the top 3 5G-enabled nations with over 125 million 5G users. The transformative power of 5G will provide new employment and entrepreneurial opportunities to millions of Indians. To put it in our Prime Minister's words, it will help both job seekers and job creators. We recently launched Jio Bharat, a revolutionary smartphone, 4G smartphone, costing just 999 rupees, lower than most 2G phones. With such bold initiatives, Jio is set to end the digital exclusion in India once and for all. Dear friends,
our Honorable Prime Minister has unified the country in many ways. Through the GST, he created one nation, one tax, one market. He has led the digital connectivity revolution that has connected 1.4 billion Indians through his motto of Sabka Saath, Sabka Vikas. He made development reach everyone, irrespective of region, religion, or caste. He has built the tallest statue in the world, the Statue of Unity, which is dedicated to the great Sardar Patel, who united India. Shri Narendra Modi ji, your efforts to bring India and Indians together motivate all of us at India Mobile Congress. We promise you, through the power of technology, we will build a digital statue of unity. This too will be the tallest in aspiration and achievement. Through the power of technology and connectivity, we will unite and inspire 1.4 billion Indians with the single dream of making our beloved motherland, Bharat, the most prosperous, the most technologically advanced, the most inclusive and the most harmonious nation in the world. On behalf of all the young digital entrepreneurs, young digital innovators, young digital startups at the IMC, I assure you that we shall work tirelessly to realize India's dream during India's Amrit Kal. Thank you. Jai Hind. इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन के मौके पर कुमार मंगलम बिरला भी मौजूद रहे। उनका कहना है कि डिजिटल ग्रोथ के मामले में भारत ने दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा दिया है और डिजिटल ग्रोथ भारत की इकोनॉमी को एक नया मुकाम देगा। In the coming quarters, Vodafone Idea will initiate significant investments in order to roll out 5G networks and further expand 4G coverage across the country. Moreover, the company is determined to realize the government's vision of establishing a robust supply chain in critical and emerging areas, including Open RAN. This endeavor will enable innovative Indian companies to design both hardware and software for the global markets. वहीं भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है कि इस मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो भारत ने अपनी ताकत दिखा दी है कि बहुत डीप रूट्स इंडिया ने पकड़ लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। एप्पल से लेके डिक्सन, सैमसंग से लेके टाटा, हर कंपनी छोटी बड़ी स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी तरह जूझ गई है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन की तरह स्पेशली फॉर अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़े पैमाने पे एक वर्ल्ड लीडर साबित हो रहा है इस वक्त। फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस से सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश। इस दौरान टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की हमारे सहयोगी असीम मनचंदा ने। आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव है। सर, 5G हमने देखा सबसे बहुत तेजी से रोल आउट हुआ पूरी दुनिया में। अब हम 6G लैब के अंदर खड़े हुए हैं। 6G को भी इतनी स्पीड दिखेगी हमको? आपने देखा किस तरह से एक 2G का जमाना था जब देश में जो भी उस समय की सरकार थी उनकी नीति और नीयत एक अलग ही तरह की, इसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 2014 के बाद में देश के टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया, 4G का रोल आउट एब्सोल्युटली स्मूथ हुआ, 5G का रोल आउट वर्ल्ड का फास्टेस्ट हुआ और अब 6G में लीडरशिप लेनी है, ऐसा टारगेट प्रधानमंत्री जी ने रखा है। उसी कड़ी में आप देखेंगे देश में कई जगह 6G का डेवलपमेंट चालू हुआ है। भारत 6G विजन जो बना उसको अभी ITU ने एक्सेप्ट किया है। आप जहां खड़े हैं वो एक 6G की लैब है। बहुत जल्दी 2 और 6G की लैब्स भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बनने वाली है और एक और प्राइवेट सेक्टर की लैब भी 6G की खुलने वाली है। तो 6G में भारत डेवलप करने का लीडरशिप लेगा, साथ ही साथ देश के हर कोने में अच्छी क्वालिटी की हाई स्पीड सर्विसेज पहुंचे, उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। सर, आपके आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, काफी रफ्तार पकड़ी टेलीकॉम सेक्टर ने, आगे भी जारी रहेगा, आगे भी रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे? टेलीकॉम सेक्टर आज एक सनराइज इंडस्ट्री बना है, नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, बाकी कई सेक्टर्स को टेलीकॉम सेक्टर के कारण बल मिल रहा है। ये सेक्टर प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के विजन का एंट्री पॉइंट है।
बहुत अच्छा इस सेक्टर में ग्रोथ है। आने वाले समय में भी बहुत ग्रोथ होगी, बहुत रिफॉर्म्स होंगे। सर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, आज एक कंपनी के चेयरमैन भी बोल रहे थे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफी बूस्ट हुआ। आपको भी लगता है आगे भी और बूस्ट होगा? पीएलआई स्कीम भी आप लेकर के आए हैं। आज से 10 साल पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं थी। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान विश्व में दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हो गई है। जैसे अगर हम किसी मोबाइल फ़ोन को देखें, ये स्क्रीन है मोबाइल फ़ोन की। इस स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर रहता है और उसके पीछे जो ग्लास है, वो ग्लास गोरिल्ला ग्लास बोलते हैं। उस ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग भी हिंदुस्तान में स्टार्ट होने वाली है। कल ही मिलके गए थे गोरिल्ला ग्लास की कंपनी के ओनर्स, सीईओ मिलके गए थे, तो जल्दी वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक तरीके से मोबाइल का जो पूरा इकोसिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो हिंदुस्तान में डेवलप हो रहा है। सर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की बात करूं, कंपनियां इंतजार कर रही हैं, कब तक एक पॉलिसी, एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन हम देख सकते हैं? बहुत जल्दी ट्राई का रिकमेंडेशन आना चाहिए। जैसे ही ट्राई का रिकमेंडेशन आएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम का भी एक काम आगे बढ़ेगा। आप ओवरऑल अगर टेलीकॉम सेक्टर में देखो तो ऑप्टिकल फाइबर ले करना, टावर नए लगाना, 4G और 5G को रोल आउट करना, मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट की करना, हैंडसेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, डिज़ाइन में आगे बढ़ना और सेमीकंडक्टर चिप्स उसके लिए जो चाहिए वो बनना। ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम में इस पूरे पिक्चर को अगर आप देखो, उस पूरे पिक्चर में आज एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के एग्जीबिशन में रिलायंस जियो ने अपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर की पहली झलक दिखाई। आखिर प्रोडक्ट कैसे काम करता है, आपके कितने काम की चीज है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी असीम मनचंदा ने। आपने जियो की फाइबर सर्विस के बारे में सुना होगा, एयर फाइबर सर्विस के बारे में सुना होगा। आज हम आपको जियो की सैटेलाइट फाइबर सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं। रिलायंस जियो ने जियो फाइबर सर्विसेज का आज ट्रायल किया है। इंडिया की पहली गीगाबिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। आप पूछेंगे कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्यों? खासतौर पर दूर दराज के इलाके हैं, रेगिस्तान है, जंगल है, पहाड़ है, समुद्र है, वहां पर सैटेलाइट के जरिए आसानी से कनेक्टिविटी दी जा सकती है। कंपनी ने इसके लिए लग्जमबर्ग की कंपनी SES के साथ करार किया है। आज ट्रायल किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारी सैटेलाइट है। सबसे पहले ये एक बड़ी सैटेलाइट आपको दिखाई दे रही है। आप किसी इंडस्ट्री में है या फिर आपको कहीं दूर दराज में कनेक्टिविटी देनी है तो ये 1 Gbps की सैटेलाइट आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा एक छोटी सैटेलाइट है, वो 500 Mbps तक की आपको डाटा स्पीड दे सकती है। अगर आप किसी मूविंग व्हीकल में, मान लीजिए डिफेंस व्हीकल है, आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, वहां पर भी आपको कनेक्टिविटी सीमलेस मिल सकती है। उसके लिए आपको अपनी गाड़ी के ऊपर ये डिवाइस लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लीजिए, आप फार्म हाउस में हैं, आप समुद्र में ट्रेवल कर रहे हैं, शिप पर हैं, तो आप ये डिवाइस को अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसको कहीं भी आप रख देंगे, अपने आप आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ये सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेगा और आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। कंपनी ने इसका भी 4 जगह ट्रायल किया है, गिर फॉरेस्ट के अंदर, असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर। इस कंपनी ने ऑलरेडी ट्रायल किया और काफी सक्सेसफुल भी रहा। अब कंपनी को दूरसंचार विभाग से सब स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। एक बार सरकार कंपनी को स्पेक्ट्रम दे देगी तो कंपनी इसके कमर्शियल सर्विसेज देना शुरू कर देगी। शुरुआत में हो सकता है कि सर्विसेज थोड़ी महंगी हो, लेकिन जल्दी जैसे जैसे लोगों तक पहुंच जाएंगी ये सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी और लोगों को कहीं भी, कहीं दूर दराज के इलाकों में रहें तो उनको आसानी से सैटेलाइट से कनेक्ट करके जुड़े रहे, इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का मजा ले सकते हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली। जरा सोचिए कि आप अपने मोबाइल या टीवी पर कोई मैच देख रहे हो और आपको वैसा फील आए जैसा कि आप स्टेडियम में देखते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल हो सका है इस डिवाइस की वजह से और जियो डाइव की वजह से। ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये आपको अपने घर में बैठे बैठे ऐसा फील देगी कि आप स्टेडियम में बैठे हैं। आप पूरे 360 डिग्री देख सकते हैं स्टेडियम को, आप बिल्कुल क्लोज करके देख सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। आप जिस स्टेडियम में जिस जगह पे देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। वो सब अपने घर की पे बैठे बैठे। इसका इस्तेमाल इस बार टाटा IPL में हुआ था और इस बार जो है आने वाले कई सारे स्पोर्टिंग मैच में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करती है। ये कैसे काम करती है और क्या फीचर्स है, क्या खासियत है? पहले तो ये इमर्सिव 360 एंटरटेनमेंट जियो ने इस साल लॉन्च किया था टू एलिवेट जो आपका एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस होता है। आप चाहे मैचेस देखते हो या रियलिटी टीवी शोज देखते हो या मूवीज देखते हो,
राइट। तो इसमें हम स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यूजिंग 360 कैमराज वी रिकॉर्ड 360 कंटेंट और वी कैन स्ट्रीम इट लाइव डायरेक्टली टू योर फोन। जैसे यहाँ इस मैच में दिख रहा है, ये हमने आईपीएल में मैच में 360 स्ट्रीमिंग की थी, मोर देन 70+ मैचेस में। आप अपने फोन पे मान लो आपके पास कंट्रोल रहेगा यूजर के पास कि आपको कौन सा एंगल से देखना है। आप घुमा सकते हो उसको, आपको डगआउट से देखना है, आपको पिच साइड से देखना है, आपको बाउंड्री से देखना है। तो ये तो एक हुआ कि हम अपने फोन पे देख सकते हैं, बट जब हम ये डिवाइस यूज करते हैं तो ये कैसे एनहांस करता है एक्सपीरियंस? तो ये डिवाइस इज समथिंग एडिशनल विच जियो लॉन्च दिस ईयर। इसका नाम है जियो डाइव। तो जियो डाइव क्या करता है, इट फर्दर एनहांसेस योर एक्सपीरियंस ऑफ 360 कंटेंट और इन कंटेंट इन जनरल। जो जियो करंटली अपने कंटेंट निकाल रहा है विच कैन बी मूवीज और लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग, वो आप 360 में देख पाओगे थ्रू दिस। एंड ये आपको क्या करता है, सिंस इट प्रोवाइड्स यू एन आइसोलेशन, कि मतलब आप बाहर की दुनिया से एकदम वो हो जाओगे एंड यू विल गेट इमर्स्ड इन। तो अगर मैं इसको पहन के घूमता हूँ तो मुझे एक पूरा 360 व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टेडियम का, और मैं इसे पूरी तरह से देख सकता हूँ अपने घर में बैठे हुए या कहीं पे भी। ऐसा फील आ रहा है जैसे कि हम स्टेडियम में ही बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल एक आपके स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस को पूरा बदलने वाला है जियो डाइव। कैमरामैन अखिलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन के मौके पर ही प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि जिस तरीके से भारत ने 5G के मामले में तेजी से प्रगति की, दुनिया को पीछे छोड़ दिया, उसी तरीके से अब बारी है 6G के मामले में तेजी से आगे बढ़ने को लेकर के। इसी सिलसिले में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के एग्जीबिशन के दौरान पहली बार आईएमसी में 6G का लाइव डेमो हुआ। ये 6G किस तरीके से आपके हेल्थ केयर सेक्टर को बदलने वाला है, किस तरीके से पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर को बदलने वाला है, ये आपको देखने लायक है। और इस मौके पर नोकिया के सीएमओ से बातचीत की हमारे सहयोगी दीपाली नंदा ने। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पहली बार 6G नेटवर्क का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। नोकिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचे थे और उन्हें ये बताया गया कि कैसे 6G नेटवर्क आने वाले वक्त में हम सबकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। तो कैसे ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जिसके जरिए पता चल पाएगा इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में, बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित मारवा, नोकिया में सीएमओ हैं। सर, कैसे ये पूरा आपने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाया पीएम को, इसके बारे में बताएं। ये डेमोन्स्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6G लाइव इक्विपमेंट लगा है। ये कोर नेटवर्क है, ये उसके रेडियो यूनिट्स हैं जो 6G की रेडिएशन और वेव्स को मेरी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू उसको ये पता चलता है कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरी स्पीड क्या है। अब इस डेमो में हम ये दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं चलता हूँ, मेरे पास कोई सेंसर नहीं है, यहाँ पे कोई सेंसर नहीं लगा हुआ। ये एक वर्चुअल पियानो है जो मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ वैसे मैं पियानो की कीज को बजा सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा डेमो है, जो इसके बहुत सारे यूज केसेस आ सकते हैं। एक और डेमो है हमारा जिसमें हम एक लॉजिस्टिक का यूज केस दिखा रहे हैं। इस लॉजिस्टिक यूज केस में हम ये कह रहे हैं कि एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस के अंदर एक फोर्कलिफ्ट आ रही है। अब उस फोर्कलिफ्ट में मैं एज अ ह्यूमन बीइंग चल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं फोर्कलिफ्ट के सामने आता हूँ तो मेरे को एक अलर्ट मिलता है और कॉल कंट्रोल सेंटर को अलर्ट मिलता है कि भाई वहाँ पे एक आदमी खड़ा है। फोर्कलिफ्ट को रोक दिया जाता है, उसको मैसेज आता है, वो रुक जाती है, और जैसे ही मैं उसके पाथ से क्लियर हो जाता हूँ तो वो फोर्कलिफ्ट जो है आगे पास हो जाती है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। वेयर हाउसिंग जैसे हमने बोला, स्मार्ट सिटीज़ बोला, सिक्योरिटी के लिए हो सकता है, बॉर्डर एरियाज में डिटेक्शन के लिए हो सकता है, माइनिंग में हो सकता है, बहुत सारे। मतलब हर एक क्षेत्र, हर एक इंडस्ट्री में 6G टेक्नोलॉजी को एज अ सेंसर इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि किस तरह से भारत 5G में तो काफी तेजी से आगे बढ़ ही रहा है और अब देश और दुनिया के सामने 6G में भी भारत का परचम लहराता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर नोकिया की तरफ से किया गया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस से सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले 2 दिनों तक हम इस पूरे टेक्नोलॉजी के मेले की आपको सैर कराएंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे किस तरीके से तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है और ये टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालने वाली है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।